بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادارے اور افراد کیسے ترقی کریں۔ اس کا تعلق انسانی وسائل کے استعمال اور اداروں کی ترقی اور بقا کے حوالے سے ہے، اور اس میں اہم چیز افراد کی اپنی اصلاح، بہتری اور کامیابی، اور اس کے نتیجے میں اداروں کی اپنی بقا اور تسلسل اور کامیابی کے تعلق کے حوالے سے ہے۔ اب آئیے ان عادات کی طرف جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ عادات ہیں یا بیڈ ہیبٹس ہیں، اور ان سے رکنا اور ان کو روکنا دونوں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ شک کرنا اور شکی المزاج رہنا، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، ہر ایک کو شک کرنا، یہ ایک ایسی عادت ہے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ خوف، ہر وقت حالت خوف میں رہنا کہ اب کیا ہوگا، پھر کیا ہو گیا، پھر کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس خوف سے نکلنے کی آپ کوشش کریں۔ حسد آپ کو کھا جاتا ہے، جیسے دیمک درختوں کو کھاتی ہے، ویسے ہی حسد آپ کی شخصیت کو کھا جاتی ہے۔ جن کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ ان کے نصیب، آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں آپ کو ان کا حساب دینا ہے۔ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیجئے۔ آپ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں سے بہتر ہے، دنیا کی حالت تو دیکھ لیں۔ تو پھر آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے تاکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو۔ کہتے ہیں کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے، اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھیں۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کیجئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تصور کیجئے اور خوش رہیے۔ لوگوں کی نعمتوں سے جلنے اور حسد کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ اب آئیے کنجوسی کی طرف۔ کنجوس انسان مالدار ہو کر بھی فقیر رہتا ہے، اور اپنے آپ کو فقیر چھوڑ کر دوسروں کو مالدار چھوڑنا چاہتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے دیا ہے وہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تنگ نظری سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کی شخصیت میں تنگ نظری ہے، آپ میں وسعت نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ نہ آپ خود آگے بڑھتے ہیں، نہ دوسروں کو آگے بڑھنے دیتے ہیں، بلکہ ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آگے نہ بڑھ جائے، اور خود بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا، چیزوں اور باتوں کو مس اسٹیٹ کرنا، مس ریپرزینٹ کرنا، حقیقت کچھ اور ہے اور ذکر کچھ اور کرنا، ہونے والا کچھ ہے اور آپ پیش کسی اور انداز سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ میں بھی آتا ہے، غلط بیانے میں بھی آتا ہے، دروغ گوئی میں بھی آتا ہے، مس ریپرزنٹیشن میں بھی آتا ہے۔ حد یہ کہ اس کی جو قانونی ڈیفینیشن ہے وہ چیٹنگ اور فراڈ میں بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ سچ بولنے کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، لیکن جھوٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ بول کر آپ اس جھوٹ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف چادریں اور دیواریں بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ ایک بار تو جھوٹ بول کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو اپنی اس غلطی کا شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے، تو پھر آپ ایک ملامت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خود ملامتی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر آپ کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو لوگوں کو نقصان ہوا ہے ان کی بددعائیں تو آپ کو الگ سے لگیں گی،
लेकिन खुद आप मकाफात अमल का शिकार भी हो जाएंगे। तो झूठ बोलने से भी परहेज कीजिए। एक बार आपने झूठ बोल दिया तो आपने जो कुछ भी अब तक तामीर किया है सब जमीन बोस हो जाएगा और फिर आप पे एतमाद नहीं किया जाएगा। आप काबिल एतमाद शख्स नहीं रहेंगे, आपकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लॉयल्टी और वफादारी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप वफादारी नहीं करते और बेवफाई करते हैं, बिट्रे करते हैं, मौका पाते ही लोगों को ये कर देते हैं, कोहनी मार देते हैं, तो इसके बेवफाई के होते हुए आप इदारे के साथ ज़्यादा अरसे तक चल नहीं सकते, इसलिए कि आपका एतमाद मजरूह हो जाएगा। अपने साथियों के साथ आप शदीद मिजाज नहीं रह सकते, न गुस्से के साथ रह सकते हैं, न सख्ती के साथ रह सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि अपने साथियों के साथ नर्म मिजाजी के साथ पेश आए। तासुब ये आपको भी तबाह कर देगा और आपके इदारे को भी तबाह करने का बाइस बनेगा। अकरबा परवरी, नेपोटिज्म, ये वो चीजें हैं जो आपको तो थोड़ी देर के लिए मजबूत कर देती हैं, लेकिन आपके इदारे को हमेशा तबाह कर देती हैं। अपने मफाद की खातिर किसी को नुकसान न पहुंचाएं। आज आपको कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन आप किसी को नुकसान पहुंचाकर कितना अरसा सुख के साथ उस मफाद को खाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए कि अदल व इंसाफ महज हशर पे मौकूफ नहीं, अदल इंसाफ महज हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। इसको हमेशा पेश नजर रखें। खुदगर्जी, इदारों में काम करते हुए आपको इदारों की अजीम मफाद की खातिर कुर्बानी देनी होगी और अपनी खुदगर्जी से बचना होगा। किसी ने काम किया है तो उसका आप क्रेडिट दें उसे। आप देखें मगरबी इदारों में छपी हुई किताबों में राइटर कितने लोगों को क्रेडिट देता है। इसी अंदाज से अगर आप टीम में काम करते हैं तो कभी आपको कम वजन उठाना पड़ेगा, कभी ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा। ये चीज भी बहुत अहम है। अलबत्ता आखिरत के नुक्ते नजर से आपको खुदगर्ज बनना पड़ेगा, इसलिए कि जवाबदेही आपके जिम्मे है। किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत मत तबाह कीजिए। किसी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाकर, झूठ बोलकर, नुकसान पहुंचाकर अपनी आखिरत मत तबाह करें, इसलिए कि आखिरत में आपको हिसाब देना होगा। रोज़े हशर आपसे पूछा जाएगा कि हकीकत तो ये थी, तुम जानते भी थे, मगर तुमने इसको कैसे बयान किया कि लोग आपके धोखे में आ गए, और तुमने नाजायज तरीके से लोगों को धोखा देकर नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। लिहाजा आखिरत के नुक्ता नज़र से ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों की दुनिया बनाने के लिए, अपनी लीडरी चमकाने के लिए, अपनी पकड़ को ऊंची करने के लिए आप वो कुछ कर लें जिसका आपको आखिरत के अंदर बहुत हिसाब देना पड़ेगा। तो इस मुश्किल से बचने की कोशिश करें। बदवज़ई, अपने आप को मेले और गलीज अंदाज से बचाने की कोशिश कीजिए। कपड़े अच्छे और साफ सुथरे हों। इदारे के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को सुस्ती और काहिली से बचाइए। सुस्ती आपको कोई काम शुरू नहीं करने देती। दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचिए, वक्त खत्म होने के बाद उठिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो हैं दफ्तर में उस वक्त पहुंचते हैं जब रजिस्टर उठ जाया करे।
9 से 5 टाइम है तो 9 बजे काम शुरू करने का वक्त है, इससे पहले आप अपने आप को सेटल कर लिया कीजिए। और 5 बजे का मतलब ये कि 5 बजे आप चीजों को बंद करें, उसके बाद आप निकलें। बदअखलाकी और अकड़पन और तेवड़ी चढ़ाने से बचने की कोशिश करें। ये चीजें काम नहीं आती, ये चीजें आपकी रिस्पेक्ट को डिस्टर्ब करती हैं। आपकी शख्सियत में अगर हल्कापन है तो वो आपको गैर मकबूल बना देगा। कोई फलसफी किसी तालाब के किनारे एक दरख्त के साए में बैठा हुआ था, सोच रहा था। फलसफी तो सोचते रहते हैं। तो इसने देखा कि तालाब में कहीं से पत्थर आकर गिरा और उसने लहरें पैदा की। कुछ लम्हों के बाद जो है उस दरख्त से पत्ता भी गिरा और तालाब के अंदर गिरा, लेकिन उसने लहरें पैदा नहीं की। तो फलसफी ने कंक्लूड किया कि दुनिया में लहरें वही लोग पैदा करते हैं जिनके अंदर वजन होता है। यकीन जानिए, पत्थर के अंदर वजन था, पत्ते के अंदर वजन नहीं था। तो अपनी शख्सियत के किरदार को, अपने अखलाक को मजबूत बनाइए, भारी बनाइए, ताकि आपके ज़रिए से लहरें पैदा हों। अपने आप को झुंझलाहट और परागंदगी से बचाने की कोशिश कीजिए। आपकी चीज़ें अगर मुंतशिर हैं तो इनको मुज्तमा करने की, जमा करने की कोशिश कीजिए। सर झुकाए रहने से बचिए, ये आपकी कमज़ोरी और आपकी बुज़दिली की अलामत है। अपने आप को कमज़ोर जाहिर न कीजिए। आपको इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को ताकतवर जाहिर करते हुए चलना होगा। इंकिसारी अलग चीज़ है। आपका कमज़ोर जाहिर करना आपके लिए नुकसानदेह है। आपकी शख्सियत के अंदर इंकिसारी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग आपको कुचल डालें। अपनी शख्सियत को बेइत्मीनानी से बचाने की भी कोशिश कीजिए। ये 6 वीडियोज़ हैं जिसमें से एक आज आपके सामने पेश की गई। आप इस वीडियो को अपने इदारे के तरबियती कोर्स में भी शामिल कर सकते हैं। आप अगर टीचर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहे हैं तो आप खुद भी तरबियत दे सकते हैं। ग्रुप की सूरत में देखकर अपने इदारों की तरक्की के लिए कोशिश कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और अगर आप किसी NGO से वाबस्ता हैं और माशरे में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं या लोगों को एम्प्लॉयमेंट स्किल सिखाना चाह रहे हैं तो इन वीडियोस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अमा अलैना इल्लल बलाग।